coming in right this minute. इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकी हमला। इसे भारत पर अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है। The stock market of India has shut down and there is confusion and chaos on the streets of Delhi. The President of the United States has condemned the attack. Government officials को evacuate करने की कोशिश लगातार जारी। गुजरात में भड़की सांप। ये भी जाता है कि उन्हीं सवारियों का दाहोद रेलवे स्टेशन पर गिर जाएगा। आग से 59 लोग जिंदा जल गए और देखते ही देखते गुजरात दंगों की आग में झुलसने लगा। Suspect that it was a vehicle-bound attack. We are going to carry out a professional post-blast investigation. And I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर 2024 अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सिर्फ अच्छी खबर सुनने को मिली थी। उनकी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचकर $600 मिलियन रेज कर लिए थे। इससे पहले हालांकि इनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे। कहीं पर कोयले घोटाले का आरोप, कहीं पर लैंड स्कैम का आरोप, तो कहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। प्रतापगढ़ का ये अपूर्व समारोह तो महाराष्ट्र के इतिहास में सोने के हरूफों में लिखा जाएगा। एक महान व्यक्ति जब दूसरे महान व्यक्ति का गौरव करने आगे बढ़ा, तब कोटि कोटि महाराष्ट्र वासियों के मुंह से धन्योद्गार निकल उठे। Premier Nehru comes to Orissa to inaugurate the latest achievement in India's plan to bring electricity to every village in the land, the big Hirakud hydroelectric dam. 3 miles of stone and concrete make it the longest of its kind in the world. With its earth dikes, it completes a 20-mile wall impounding the great Mahanadi River. Hundreds of villages will get power and irrigation from the new project, whose foundation stone Nehru laid 9 years ago. Behind the dam is growing a reservoir of 288 square miles, the biggest man-made lake in the whole of Asia. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है।
50 years ago, India conducted its first nuclear test in Pokhran, codenamed Operation Smiling Buddha. With this, India had entered the League of Nations with nuclear capabilities. It also adds that the then chairman of the Atomic Energy Commission, Dr. H.N. Sethna, and director of the Bhabha Atomic Research Center, Dr. R. Ramana, who supervised the test, flew to Delhi even without a wash or change to give a full account to Prime Minister Indira Gandhi. India said that it undertook this program to develop its own technology for peaceful use of nuclear energy, and it had no intention of going in for nuclear weapons. The groundwork for testing nuclear energy was laid even earlier by renowned Indian scientists Homi G. Bhabha and Vikram Sarabhai. In 1954, the Department of Atomic Energy was founded, with Bhabha as director. 1986 में स्थापित किए गए MTNL ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन के विस्तार के लिए सार्वजनिक कॉल ऑफिस यानी PCO भी बनाए। राजीव गांधी के कार्यकाल को कई अहम फैसलों के लिए याद किया जाता है। All the scientists associated with this mission for the successful completion of the first step. When completed, the mission will put India in the very small group of 6 countries which have thus far sent space missions to the moon. Our scientific community has once again done the country proud, and the entire nation salutes them. Rahul Gandhi's first campaign outside of Uttar Pradesh. He seemed to go down well with the urban Surat crowds. कभी देखा नहीं हम लोगों ने, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं, देखेंगे क्या बोल रहे हैं वो फर्स्ट टाइम, नथिंग अबाउट दैट। सुपर्ब, सिंपली सुपर्ब। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. लाख रुपए आपको मिले, आपको नहीं मिले, मगर मोदी जी ने 10 लाख रुपए का सूट पहन रखा है। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं, ठीक है साहब, एक सवाल और है, वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखो, जो भूमि अधिग्रहण का इशू था वो राहुल गांधी की देन है। आज अगर भूमि अधिग्रहण एक्ट बना है तो उसका अकेले आदमी का बड़ा रोल उसका रहा है। जिसके घर में भी 2 रुपए आ रहे हैं उसके फोटो अपने घर में लगाने चाहिए। भूमि अधिग्रहण में उनका बड़ा रोल रहा है, उस टाइम पे उनकी सरकार थी। और इस रास्ते पर चलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब लोगों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है, और ये यात्रा हिंदुस्तान की आवाज को सुन रही है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई आम लोगों से मिलते दिखाई दिए। कभी वो बच्चों के साथ चलते, कभी कसरत करते, कभी बैलगाड़ी चलाते, तो कभी नाव चलाते। ऐसे पलों का उन्हें आभास हुआ जब छोटे बच्चों ने उनका दिल छू लिया। भारत को जोड़ने के इस राहुल गांधी के अभियान में राहुल को अपनों का साथ तो मिला ही,
साथ ही कई फिल्मी सितारों, विशेषज्ञों और नेताओं ने भी राहुल का साथ दिया। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बड़े सहज, समझदार और लोगों के बीच आम लोगों जैसे ही दिखे, पर ऐसे कई पल भी थे जहां राहुल गांधी का एक अलग अवतार देखने को मिला। आधुनिक राजकारणाला लोककल्याणकारी आणि सामाजिक न्यायाचा चेहरा देणारे देशाचे खंबीर नेतृत्व, भारत जोडो यात्रेतून काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि मणिपूर ते मुंबई हा पायी प्रवास करून जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। आणि यानंतर ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। हरे 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 जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हरे छत्रपती शिवाजी महाराज की।